starts, Joseph. Okay. Okay, we will continue the classification of plant. Here we will start from simple plant. Mas then a purchase book request and okay. Moses plant or simple plant with the simple root leaves need moist environment or damp environment. These are the group of bryophytes plant. Bryophytes. Okay, what are the characteristic of Moses plant? And higher tree, a plant that have a proper structure developed. Simple stem and leaves have rhizoids for anchorage. They have root like a structure. They have a plant body, but we can't say कि ये true structure है. But we can say structure जो है, they look like a leaves, they look like a stem, they look like a roots. So here root जो है properly in the case of bryophytes, we will call this rhizoid structure that will anchor that plant body. Spore from capsules that will instead of, we know that this type of plant are those plant take a proper fruit bodies, ठीक है, flower formation and seed formation. Instead of that they adopt other structural body और उसमें जो specific जो है वो क्या है, spore है. Instead of that of seed they will produce a spore for their reproduction process. उसका जो environment है वो क्या है, वो damp environment है. although they are terrestrial plant और terrestrial plant में ये क्या है, जो moist condition वाला environment है they will require. So here if you look at the body of that bryophytes in case of most plant, ये leaves जो हैं इसको false leaf हम consider कर रहे हैं. stem जो है ये false stem है और root जो है ये false root है. roots को हम rhizoid कहते हैं और other structure जो है इसको हम blade कहते हैं leaves को in the case of the bryophytes plant. Fern have frond instead of leaves and do not produce seed, only spore. So this is another category of the plant after the bryophytes. Fern जो है the category of the plant group of plant that are pteridophytes. इसको हम pteridophytes की category में use कर रहे हैं. They can't produce a seed, although इसमें flower formation भी नहीं होता है, ठीक है. And they see feathery leaves हैं, underground stem है, have vascular tissue proper. इसमें जो है ये structure bryophytes, ठीक है. और bryophytes में जो है ये vascular tissue जो है ये नहीं होता है. vascular tissue are those tissue that are help in the transportation and support. simply damped and shady place होते हैं इसमें. again moist or growth in the case of pteridophytes. Broadly जो हम classify कर रहे हैं को into cryptogamies
एंड फेनेरोगेमी। क्रेप्टोगेमी का जो ग्रुप है उसमें ये फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है। और अगेन फरहान याद ना को रमेश इच्छता सो प्रॉब्लम दे। जी सर। सर आवाज, ये आवाज कट गई सर। सर कवर आवाज कट रही है आपकी। आवाज कट रही है। जी सर। यस सर। फरहान अदनान आपको आवाज सही आ रही है, इस नेट को मसला तो नहीं होगा। सर सर बाज मात कट छी सर। आवाज समराजी। सम टाइम आप सर लोगों का मात आवाज कनेक्शन सही जो राजी। ओके जी सर। वेट। ओके category of plant within the category of the sometime they are producing a flower. So here gymnosperms are those plants that produce a naked seed. इसमें flower production जो है वो नहीं होता है, fruit जो है formation नहीं होता है। within गेमी जो है इसमें ये क्या है, एक अलग अलग कैटेगरी है, सेपरेट कैटेगरी है। conifer produce a male and female cone, then seed mature in a female cone. They have a proper some reproductive structure produced in the gymnosperm. फिर gymnosperm के अपने characteristics हैं, वो क्या है कि if look at their leaf structure, वो tall trees होते हैं। stem जो है woody है, उसको हम trunk कहते हैं। जो हायर ट्री के जो करेक्टरिस्टिक है वो जिम्नोस्पर्म की भी क्या है, करेक्टरिस्टिक है। ओके दीज आर दी करेक्टरिस्टिक। टाल एवरग्रीन ट्री होते हैं, रूट जो है वुडी स्टेम है, इसमें नीडल लाइक लीव्स हैं, इसमें वेस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट एंड जिम्नोस्पर्म्स। कोन विद रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, नेकेड सीड इन फीमेल कोन एंड जो कंडीशन है हैबिटाट है उसका वो क्या है, ड्राई प्लेसेस है। So these are the example of the gymnosperms, पाइन ट्री जो है, ठीक है। Now these are the needle shaped leaves in a case of gymnosperms. Again these are the reproductive structure of the gymnosperm। मेल कौन है और ये फीमेल कौन है, स्कैटर्ड है। मेल कौन और फीमेल सर कौन जो सर है। आवाज सामने राजी सर। हेलो हेलो अदनान। सर जी सर, स्टूडेंट वही सर चाहिए, आवाज कट की दादा ही तो सर द नेट प्रॉब्लम बवी। तब तक क्लियर दर्जी। यस सर, बस क्लियर राजी सर, वक्ती सर मामूली शांति कट की दो सही शो सर। ओके सही है। ओके ये जस्ट हम कंपैरिजन कर रहे हैं मेल और फीमेल कौन की विद जिम्नोस्पर्म। बाकी डिटेल जो है हम इसको कवर करेंगे, जो स्पेसिफिक टॉपिक है जिम्नोस्पर्म का और एंजियोस्पर्म्स का, ठीक है। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, क्लासिफिकेशन है। जी सर ओके। So this is all about the classification of plant based on some characteristic. Sometime we classify a plant based upon on their seed producing plant or without seed producing plant. Again we can classify a plant on the basis of their flower formation। इसमें है कि हैबिटाट के में वो क्लासिफिकेशन हम करते हैं। तो ये डिफरेंट क्राइटेरिया जो है हम रख के डिफरेंट प्लांट को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। वरना नेक्स्ट जो है वो क्या है, classification of the plant on the basis of their reproduction process, how plant will be reproduced। तो type of plant reproduction process, actually there are two specific process, asexual reproduction process और sexual reproduction process। इसमें ये asexual reproduction process sometime इसको हम वेजिटेटिव
कहते हैं, ठीक है। इन्वॉल्व यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट फॉर प्रोपिगेशन। इफ वी टेक सम पार्ट ऑफ द प्लांट and then we keeps for some time, they will reproduce. This type of reproduction process, इसमें जो यूनियन है ऑफ टू प्लांट वो इन्वॉल्व नहीं है asexual reproduction process में. The result is a clone, a plant genetically similar to its parent. If we remove a part of plant may be a leaves, it may be a stem, it may be a root, ठीक है। तो ये डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट है। अगर हम इसको सेपरेट करें और फिर हम उसको ग्रो करें और वो जर्मिनेट हो जाए तो वो आइडेंटिकली सिमिलर होगा टू दैट पेरेंट प्लांट। इसको हम क्लोन भी कहते हैं। इन सम वे वी कैन से इट इज द क्लोन ऑफ दैट पेरेंट प्लांट। तो इस process को हम asexual reproduction process कहते हैं। Sexual reproduction process involve using a seed to propagate a plant. If we grow a seed, it will germinate into new plant. The flower are important because they contain the reproductive organ. Just like in case in flowering plant में जो है properly male और female reproductive ऑर्गन है और इसमें रिप्रोडक्ट है वो क्या है, ये फ्लावर है, ठीक है। तो यूनियन ऑफ टू प्लांट is a result of germination of the seed or production of the seed is called sexual reproduction process. Although sexual reproduction process जो है we can observe the sexual reproduction process and spore producing plant beside the seed producing plant. तो ये टू स्पेसिफिक प्रोसेस जो है ये रिप्रोडक्शन मेथड है इन अ प्लांट। So these are the vegetative reproduction process या ऐसे vegetative propagation is the piece of the body of multicellular organism give rise a new organism. If we isolate the piece of the body from a parent plant, just like it may be a leaves, it may be a stem, it may be a root, and grow, it will be grow or germinate into new organism. This is called vegetative propagation process. We can propagate, okay? We can multiply the plant in this way. Common in plant using stem, leaves or roots. So we can use either it will be the stem, it will be the leaves, it will be the root. Can occur naturally or artificially. We can perform vegetative propagation process either in a vitro condition or it can be propagate or it can be occur naturally. So here natural vegetative propagation process जो है इसमें ये एग्जाम्पल है। दीज आर दी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एग्जाम्पल। रनर है, बल्ब है, ट्यूबर है एंड राइजोम है। रनर, बल्ब, ट्यूबर एंड राइजोम। ओके, व्हाट इज रनर? रनर में क्या होता है? स्टेम ग्रो ऑन टॉप इन अक्रॉस द ग्राउंड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टेम। इसमें जो प्रीवियस स्टेम है, ठीक है, पेरेंट का, ठीक है, वो एक्चुअली ग्रो होता है, दे ग्रो above the ground or they will just like this is the previous stem, यहाँ से ये germinate होगा, they will run above the ground and then some of the portion will be inside the ground or it is responsible for the formation of the new plant. It can produce a new plant. So in this type of propagation process, this type of vegetative propagation process is called runner. Further from this runner, new plant will be grow. Example जो है some grasses family जो है और well known जो है वो strawberry जो है वो क्या है? These are the example of the runner. So we can grow strawberry or other grasses family of the plant through the vegetative
propagation. Within vegetative propagation, a type of vegetative propagation process is called runner. इसको हम runner कहते हैं. Just like इस runner में क्या होता है कि properly stem जो है, ये एक स्टेम जो है वो रन होता है अबाउ द ग्राउंड, और सम पोर्शन जो है वो इंसर्ट हो जाता है इनसाइड द ग्राउंड, और वही स्टेम जो है दे आर डेवलप्ड इनटू न्यू प्लांट. इस तरह इसी न्यू प्लांट से फिर अनदर स्टेम जो है वो रन हो जाता है, एंड देन इट विल बी इंसर्ट एंड दे विल बी reproduce another new plant. So this is the sort of vegetative propagation process in which a part of the body are involved. A part of the body will be either stem, either leaves or roots. Okay. Second one जो है यस सर. okay 10,000 लग हाँ ठीक था, पता लगी मत. हाँ जी सही. ओके okay. सर. bulb. Second जो है वो क्या है, this is fun. First second one जो है वो bulb है. Okay. Underground stem, again this is the underground stem for food storage and large leaves. Each bulb are developed into new plant. One of the example bulbs are on जो है ये example है of the vegetative propagation, how plant will be propagate. One of the example is the bulb formation. bulb formation में ये क्या है कि ये stem है, again ये stem है, इस तरह ये क्या है, ये stem है, underground stem है, और ये इसके जो है ये इसमें leaves हैं और ये root है, और ये underground stem जो है ये पेड़ propagate होता है. ठीक है. Other example are also there about the bulb formation. जी सर सही. वो ट्यूबर है. ट्यूबर जो है अगेन अंडरग्राउंड यही बल्ब का सॉरी ट्यूबर का कि ये पोटैटो प्लांट जो है दे कैन प्रोपेगेट थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रोसेस और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोसेस, और जो है वो ट्यूबर है. ट्यूबर में स्टेम जो है विद इन पोटैटो, उसमें स्पेसिफिक स्पॉट हैं जिसको हम आई कहते हैं, और यही आई जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रिप्रोड्यूस इनटू न्यू प्लांट. इस तरह इससे ये न्यू प्लांट आ जाते हैं. इफ वी रिमूव दिस हॉट स्पॉट, दिस इज कॉल्ड आई. ओके. और इसको हम ग्रो करते हैं एंड इस तरह ये पोटैटो रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू होता है. पोटैटो आर एग्जांपल ऑफ द ट्यूबर vegetative propagation process. Another process, this is the rhizome. Rhizome जो है long modified stem that grow horizontally under the ground. New plant grow off the roots. Long grasses, fern rises, example of rhizomes. These are the example of rhizome. Garlic जो है वो example है rhizomes की, one of the vegetative propagation process. और इसमें ये stem for example ये rhizome है, और ये हॉरिजॉन्टली ये ग्रो होता है. क्लियर? यस सर. ओके सर. ओके. दीज आर द एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रोसेस. रन में एग्जांपल जो है वो स्ट्रॉबेरी है, और rhizomes में जो है वो क्या है उसमें ये सर. जी सर आवाज प्रॉब्लम कई कट जी. हाँ दमा सर नेट सही दे, स्टेबल दे सर. टोल लाने मैसेज इसकी आवाज मत मुंह तो आवाज सही राजी. ठीक है. अब ये और इसके लेक्चर अपलोड कर खैर दे. ओके. आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रोसेस में कटिंग जो है, ठीक है, अनदर टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोसेस, बट दिस इज द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन
प्रीवियस जो थे प्रोडक्शन प्रोसेस था या वेजिटेटिव प्रोपिगेशन प्रोसेस था। अब यहाँ पर कटिंग ग्राफ्टिंग जो है दीज आर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन प्रोसेस। all of these processes are asexual reproduction process, and within asexual reproduction process some are natural, some are artificial। तो artificial में cutting और grafting ये जो है ये क्या है, सॉरी, ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन प्रोसेस है। वन ऑफ थर्ड वन जो है वेल नोन टिश्यू कल्चरिंग प्रोसेस। टिश्यू कल्चरिंग प्रोसेस अगेन क्या है, ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन प्रोसेस है। कटिंग और ग्राफ्टिंग, कटिंग और ग्राफ्टिंग दीज आर दी क्लासिकल मेथड। ये क्या है, ये क्लासिकल मेथड है फॉर प्लांट प्रोपिगेशन, और ये आर्टिफिशियल प्लांट प्रोपिगेशन प्रोसेस है और क्लासिकल मेथड है। वाइल टिश्यू कल्चरिंग जो है nowadays we use tissue culturing process, again we use biotechnology method for artificial vegetative propagation process। These are all modern method as compared to classical method through which we can propagate a plant। उसमें ये कटिंग आ रहा है और ग्राफ्टिंग आ रहा है। कटिंग में क्या है, पीस ऑफ फ्रूट जिसको हम एक्स प्लांट के स्टेम that in certain condition are made into new plant। sample we can cut, ठीक है, a part of the plant body जिसको हम एक्स प्लांट कहते हैं। एक्स प्लांट जो है वो पीस ऑफ प्लांट बॉडी होता है, ठीक है, पीस ऑफ टिश्यू होता है। and then we grow in a specific condition, these they will be grow into new plant। this is called artificial vegetative propagation process or artificial cutting vegetative propagation process। some example are banana, roses and sugar cane। sugar cane में piece of stem जो है हम लेते हैं और rose को हम grow करते हैं, they will be germinate into new plant। इस तरह बनाना जो है हम जो है हम उसको आइसोलेट करते हैं और वो पेड़ ग्रो हो जाता है। फिर इसके क्या है प्रैक्टिसेस हैं कि हाउ वी विल ग्रो दिस प्लांट थ्रू कटिंग प्रोसेस। कटिंग में फिर स्पेसिफिक लेंथ होगा पीस ऑफ स्टेम का। इन द केस ऑफ शुगर कैन के हाउ मेनी सेंटीमीटर विल बी अबव द ग्राउंड एंड हाउ मेनी सेंटीमीटर विल अबव द ग्राउंड। तो ये इसके लिए अपने अपने प्रैक्टिस हैं फॉर डिफरेंट प्लांट इन द केस ऑफ द कटिंग कंडीशन। ग्राफ्टिंग जो है टेकिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एंड कनेक्टिंग इट इनटू द अनदर प्लांट। अ प्लांट इस तरह ये टू प्लांट हैं, ठीक है, टू प्लांट है। इसमें हम एक पीस को आइसोलेट करते हैं और सेकेंड प्लांट पर ये पीस ऑफ प्लांट करते हैं, ठीक है। combining the two plant some connecting with each other। ये फॉर एग्जांपल ये प्लांट का, ये एक प्लांट का पार्ट है, ये दूसरे प्लांट का पार्ट है और इसको हम कंबाइन करते हैं विद द स्पेसिफिक कंडीशन और फिर यही पार्ट जो है दे विल ग्रो जिसमें हमने ये कंबाइन किया है प्लांट को, तो वो ग्राफ्टिंग टेक्निक में आता है या ग्राफ्टिंग मेथड में आता है। एग्जांपल ऑफ द ग्राफ्टिंग मेथड आर जो है हम भी ग्राफ्टिंग में करते हैं, ये क्लासिकल मेथड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन प्रोसेस। थर्ड वन जो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन प्रोसेस वो क्या है, टिश्यू कल्चरिंग है। टिश्यू कल्चरिंग पर हमने डिस्कशन की थी जो फर्स्ट क्लास था इंट्रोडक्शन का कि टिश्यू कल्चरिंग क्या है, व्हाट इज वेट ओके। इसमें कटिंग और ग्राफ्टिंग ये और टिश्यू कल्चरिंग ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन प्रोसेस है। कटिंग और ग्राफ्टिंग जो है ये क्लासिकल मेथड में आता है और टिश्यू कल्चरिंग जो है वो मॉडर्न मेथड में आता है। क्लियर अदनान? जी सर बिल्कुल सर। बल्ला स्टूडेंट्स सर माता मैसेज उकड़ल चे सर तो वही रिक्वेस्ट तो कई चीज मुंग नेट प्रॉब्लम उन मुंग गेलाओ की सर क्लास की।
हाँ इलाव बेको मैं उस वासे क्लास पास ख़त्म की जी जी सर। हाँ जी सर। सो अब वो इलाव को स- बस द हाँ जी। लास्ट टाइम बिया नहीं इलाव को मैं उस से बस जी क्लास सर। ख़त्म की गया अटेंडेंस दे पर बैठ को हाँ बिया जी औरस तो सर। मैसेज तो का जदा क्लास ख़त्म शी जी सर सही है सर। तो अच्छा टिश्यू कल्चरिंग पर डिस्कशन हुई थी। टिश्यू कल्चरिंग क्या चीज़ है? We can use this term for multicellular organism. Multicellular organism specifically हम यूज़ करते हैं for plant and एनिमल, ठीक है। एनिमल में भी हम टिश्यू कल्चरिंग करते हैं और प्लांट में भी टिश्यू कल्चरिंग करते हैं। टिश्यू कल्चरिंग में हम वी आइसोलेट पीस ऑफ बॉडी को हम एक्स प्लांट कहते हैं। एक्स प्लांट जो है एक्स प्लांट दिस इज द पीस ऑफ टिश्यू, यस पीस ऑफ प्लांट बॉडी। और इसी एक्स प्लांट को हम फिर इन विट्रो एनवायरनमेंट में प्रोवाइड अ न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ मीडिया, फिर वो ग्रोथ स्टार्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड टिश्यू कल्चरिंग। टिश्यू कल्चरिंग इन द केस ऑफ प्लांट, इसमें पीस ऑफ प्लांट बॉडी, इट्स मे बी रूट, ठीक है, इट मे बी स्टेम, इट मे बी लीव्स। अगर हम लीव्स को सेपरेट करें और वो पेट्री प्लेट में रख के उसमें मीडिया प्रोवाइड करें, देन इट विल बी ग्रो इनटू द न्यू प्लांट। तो फिर उसमें हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं विद इन प्लांट टिश्यू कल्चरिंग में, ठीक है। केलेस फॉर्मेशन होता है, उसमें टोटिपोटेंसी होती है, उसमें दिस आर टर्मिनोलॉजी यूज इन द प्लांट टिश्यू कल्चरिंग। बस आप लोगों को ये जस्ट टिश्यू कल्चरिंग क्या चीज़ है प्लांट में, और ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड है, ये मॉडर्न टेक्निक है एज कम्पेयर टू क्लासिकल मेथड। क्लासिकल मेथड में फिर ये कटिंग आता है और ये ग्राफ्टिंग टेक्निक आते हैं। और ये क्या है, all of these methods are asexual reproduction process in a plant। और asexual reproduction process में एक नेचुरल है एक आर्टिफिशियल है। नेचुरल जो है वो रनर है, बल्ब है, उसमें राइजोम्स हैं, these are the नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल में पेड़ क्या है, आर्टिफिशियल में कटिंग है और ग्राफ्टिंग है। कटिंग और ग्राफ्टिंग मेथड जो है ये क्लासिकल मेथड है, और टिश्यू कल्चरिंग जो है वो मॉडर्न method है। These are the method for plant propagation, for plant growth, but these are the asexual reproduction process। Clear? यस सर। Okay. Uh, these are the last slide of this lecture। Okay. अब यहाँ पर ये इमेज जो है ब्रायोफाइट्स और ट्रिकोफाइट्स, किसका माइक है ये, किसने माइक ऑन किया? रेहान। रेहान माइक बंद कर। ब्रायोफाइट्स में ये एग्जांपल है, इसमें ये टेलोफाइट्स और सॉरी, इस विद इन ब्रायोफाइट्स में ये एग्जांपल है लीवरवर्ट्स और मोसिस का। और ट्रिकोफाइट्स में ये सिंपल प्लांट है। ब्रायोफाइट्स, ठीक है, ब्रायोफाइट्स ये सिंपल प्लांट है, और ट्रिकोफाइट्स में प्रॉपर स्टेम आ जाता है। इसमें इसमें फिर कैटेगरी है टीरिडोफाइट्स की, और फिर अनदर कैटेगरी जो है वो जेमनोस्पर्म है, और थर्ड कैटेगरी जो है वो क्या है, एंजियोस्पर्म है। ये जेमनोस्पर्म है, ये एंजियोस्पर्म है, और ये टीरिडोफाइट्स हैं, और ये ब्रायोफाइट्स की अपनी कैटेगरी है। और विद इन ब्रायोफाइट्स मोसिस प्लांट हैं और लीवरवर्ट्स प्लांट हैं। ऑल्दो ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम दे रिप्रेजेंट द एवोल्यूशन ऑफ द प्लांट, कि वो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं। उसका कॉमन जो है वो क्या है, कॉमन इंसेस्टर जो है वो एलजी है। एलजी जो है वो सिंपलेस्ट प्लांट है, यूनिसेलुलर प्लांट है, मल्टीसेलुलर इसमें भी है, लेकिन ऑल प्लांट आर इवॉल्व, इट इज बिलीव दैट ऑल प्लांट आर इवॉल्व फ्रॉम द सिंपल यूनिसेलुलर एलजी ऑर्गेनिज्म। तो एलजी जो है यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है इनटू टू लाइन। एक
जो है ये सिंपल प्लांट है। सेकेंड वन जो है ये पेयर ट्रू वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। ये प्लांट जो है, ये प्लांट इसमें पेयर वेस्कुलर टिश्यू आता है। इस प्लांट में इन द केस ऑफ दिस ब्रायोफाइट कंडीशन, ये जो है इसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं आता है। सेकेंड वन, ये लाइन जो है अगेन डिवाइड हो रहा है इनटू टू कैटेगरी, जिसको हम ट्रैकोफाइट्स कहते हैं। प्रॉपर इसमें वेस्कुलर टिश्यू अपीयर होता है, और फिर उसमें ये जो है टेरिडोफाइट्स का है, और फिर इसमें फेनेरोगेमीज प्लांट आते हैं। फिर ये लाइन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि सीड एंड पोलन अपीयर्स, ठीक है। इसमें सीड फॉर्मेशन हो रहा है टू। फिर विद इन दिस कैटेगरी, एक में जो है प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेकेंड कैटेगरी में जो है दे लेक अ फ्लावर। यहाँ पर इसमें ये प्लांट जो है एंजियोस्पर्म्स, ये फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और फ्रूट यहाँ पर जो है विदाउट फ्लावर एंड फ्रूट। यहाँ पर सीड प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन फिर यहाँ पर फ्लावर प्रोडक्शन एब्सेंट है और फ्रूट प्रोडक्शन एब्सेंट है। Just representation of the plant, how they will evolve from a single simplest organism called ancestral algae, and how they are evolved into the other plant, how they will share a common character, or how they will share a common property. So these lines represent some of the characteristic with each other, or they can differentiate a plant on the basis of some characteristic or some specific property. In case कि यहाँ पर ये हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को सेपरेट कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि दोनों जो है ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है, लेकिन एक में फ्लावर फॉर्मेशन होता है, एक दूसरे में नहीं होता है। एक में फ्रूट फॉर्मेशन होता है और दूसरे में नहीं होता है। इस तरह ब्रायोफाइट्स, टेलोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, उसमें जो है प्रॉपर प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर जो है अपीयर नहीं होती है, और टेरिडोफाइट में अपीयर होती है। फिर ब्रायोफाइट्स में जो है वो फॉल स्ट्रक्चर आते हैं, दे लुक लाइक द स्टेम रूट लाइक लीव्स लाइक स्ट्रक्चर। ओके ओके सर। ओके, ये तो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था। प्लांट डिवाइडेड इनटू वेदर दे आर वेस्कुलर सिस्टम और नॉट। वेस्कुलर सिस्टम सम प्लांट में अवेलेबल है, सम प्लांट में नहीं है। जो वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते उसको हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं, और जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं उसको हम ट्रिकोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। फिर ब्रायोफाइट्स नॉन वेस्कुलर प्लांट है। इसके करेक्टरिस्टिक है मोस्ट प्राइमेटिव प्लांट, और मोस्ट प्राइमेटिव प्लांट मीन कि ये टेरेस्ट्रियल प्लांट में फर्स्ट प्लांट अपीयर हुए हैं। फाउंड इन मॉइस्ट शेडी एरिया, इसका हैबिटेट है। नो वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, स्मॉल साइज ड्यू टू नो वेस्कुलर टिश्यू। हाउ दे विल ट्रांसपोर्ट वाटर इन अदर न्यूट्रिएंट मटेरियल, उसमें फिर ये है कि थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो फिर ट्रांसफ़र होता है। इसमें कोई ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। नो ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स, नीड वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन, और इसमें सीड की जगह ये स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। रिप्रोड्यूस using spore, a waterproof single cell that can grow into new organism. In case of this bryophyte, they don't produce a seed, they will produce a spore. Spore क्या है? ये reproductive organ है that are responsible to germinate into new organism. Most common example जो है वो क्या है? Mosses है। फिर ट्रिकोफाइट वेस्कुलर प्लांट, हायर प्लांट है, कम्प्लेक्स प्लांट है। इसमें वेस्कुलर टिश्यू फॉर्मेशन आता है दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन अदर मटेरियल विद इन द प्लांट बॉडी। इसमें फिर टू टाइप है, फ्लूइम है और जाइलम है। फ्लूइम जो है ट्रांसपोर्ट कर रहा है फूड मटेरियल को, और जाइलम जो है वो क्या है? ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वाटर मटेरियल को। दे विल अपटेक वाटर फ्रॉम द रूट एंड विल ट्रांसपोर्ट टू द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी, वाइल फूड सिंथेसिस जो है वो टेक प्लेस इन द लीव्स, और ये फिर ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी अप टू द रूट्स। तो
तो इसमें प्रॉपर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वगैरह हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम अलाउ प्लांट टू बिकम टाल, ठीक है। अनदर फंक्शन ऑफ दैट वेस्कुलर टिश्यू कि ये बॉडी, प्लांट बॉडी को एंकर बनाता है, सपोर्ट देता है। है स्पेशलाइज ऑर्गन जस्ट लाइक रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, इसमें आता है। सम टाइम ये फ्रूट जो हैं अपीयर होते हैं। So this is all about the classification of the plant. On the basis of some criteria, there are different type of classification for the plant. ठीक है? यस सर। ओके, आप लोग ये अटेंडेंस नोट करें। हाँ जी सर। सर स्टूडेंट सोई सर चे मेट के बस मंग सुमरा कोर्स राजी या हो पाते थे मेट के वो ज़दर तो हुआ है मुझे सुमरा रजी।